सब लोग बहुत डरे हुए लग रहे हैं. I can see a big smile on Bela ma'am's face there. Bonnie sir smiles as well. What about the rest of the participants? There, Helen ma'am, Sheetal ma'am, Vidya ma'am, Dinaz ma'am, and there the thumbs up goes. So in spite of the aches and pains, I can see the lovely smiles. Thank you so much for that. आप quickly लिख डालिए आपके problems जिससे आप परेशान हो रहे हैं. Whatever aches and pains you have, quickly jot it down in the chat box so that I myself will be taking it up at the end of the webinar when Swamiji himself will be entering live to answer as many questions as possible. So please jot down your problems and your contact number so that we can take it up further. Now let's come back to the aches and pains that we are suffering from. तो उसके लिए आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा. We have to take charge of our own health. So how many of us are willing to dedicatedly work on our own health? कोई भी नहीं? Can I get a quick thumbs up again? Thank you so much. Only Dinaz ma'am with a nice smile. She's ready to work upon herself. Wonderful. I'm sure I'll get many more thumbs up where people are willing to work on themselves. It's not going to be difficult. It's not going to be easy either. क्योंकि आपको dedicatedly अपने शरीर पे काम करना है. Okay? तो अगर आप थोड़ा समय देंगे, I would like to share my screen to explain to you further how you're going to come out of your current health problems. Or in other words, a brief about Ashtang Chikitsa for online neuromuscular health issues. So do I have your permission, participants? Yes or no? Please give me a quick yes. Thank you so much. Just give me 2 minutes. I'll share the screen. Is my screen visible? Yes. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. हम लोग आज शाम को किस लिए इकट्ठा हुए हैं? To know something about Ashtang Chikitsa, the online therapy for neuromusculoskeletal problems. Thanks to technology, we can take Ashtang Chikitsa all over the world, and people are joining in from all corners to know how to come out of their current problems. Namaskar, and I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra, and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa is not only used for some problems that you are having, it can also be used as a preventive. As the saying goes, prevention is always better than cure. So it can be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. So now our participants must be wondering, what has the internal organs got to do with the pains and aches? So now I will elaborate, and slowly, when you hear Swamiji's video, you will understand what your external pain has to do with the functioning of the internal organs.
So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. शायद कुछ लोगों ने कुंभक का नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा. कुंभक योगी यानी कि वो कुंभक के द्वारा आपके हेल्थ इश्यूज रिवर्स करते हैं. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. और आज के दिन में भी हमें सबको मालूम है कि इन बीमारियों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है. So at Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या कहना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structure of the human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. Profound way of addressing the aspects of a human body. Who is this webinar for? Interesting. ये webinar आखिर है किसके लिए? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will be talking about the Ashta Sharir, or the 8 softwares in a layman's language that our body has. So what are those 8 softwares or Ashta Sharir? Let's see. Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti, and the Vikriti Sharir. So now when we talk about the neuromuscular health issues, the last 2 Sharir gets the most importance. Of course, the rest are also important, but the Prakriti and the Vikriti Sharir. Prakriti yani ki nature or regenerative factors of the body. Vikriti yani ki degenerative factor of the body. सभी को मालूम है जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं, obviously the degeneration happens. But can we do something about slowing down the degeneration or accelerating the regeneration? जी हाँ, आप अष्टांग चिकित्सा के द्वारा ये imbalances को बैलेंस में ला सकते हैं. तो प्रकृति और विकृति जब बैलेंस करता है तब आपके पेन्स, एक और स्टिफनेस दूर होते हैं. Now let's come to the part where what exactly do we heal through Ashtang Chikitsa. Of course, some of the problems are quite common in today's world, thanks to technology and thanks to the lifestyle that we have. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issue. Ashtang Chikitsa can also heal some of the chronic problems which we are seeing in today's participants. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome,
spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. तो बहुत सारी बीमारियां आप ऐसे देखेंगे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू अष्टांग चिकित्सा. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. वो क्या बताना चाहते हैं हमें कि कैसे हम अपने करंट प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं थ्रू एंड थ्रू ओनली अष्टांग चिकित्सा. Thank you so much for listening to me patiently. I would again request the participants to kindly get their problems noted in the chat box along with the name and number, and I will be calling out these problems to Swamiji and he will be answering to you. So let's see how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे recorded video of Swami Raj Vibhu ji. उसके बाद we will have somebody live from Ashtang Chikitsa who's been a participant, and he or she will be sharing his journey of Ashtang Chikitsa. Then we will be sharing the program details, and last but not the least, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, Swami ji himself will be coming live to answer as many questions as possible within a limited time. Thank you so much. Namaste. And over to Anil ji to share the program. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और a sports person who has somehow damaged one knee. एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. पीपल आर गेटिंग इनटू, स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम. देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजेनरेशन इन द जॉइंट. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. दूसरा कारण हो गया, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body?
वाई इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है? यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना क्या दर्द क्या है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा.
एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं, यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर। तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे, सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट, ये अलग नहीं। सो योर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू लिव। ये आपका शरीर हमेशा एक जगह के, हाँ या ना? सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन। नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं। एंड देर इज अनदर एस्पेक्ट कॉल्ड विकृति, लॉट ऑफ सेल्स which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है। There has to be a balance and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। वी विल टेक एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये दीज आर थिंग्स यू नो ऑलरेडी, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी। आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका। सो व्हेन देयर इज अ पोल्यूटेड एरिया, यू एंटर अ पोल्यूटेड एरिया, एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जा, ध्यान दे सांसों पे। व्हाट हैपेंस मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है। यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर। इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन। दिस इज व्हाट यू डू। यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन, लेस इनहेलेशन। नाउ फॉर हॉलीडेज, इफ यू गो टू अ हिल स्टेशन, अगर हॉलीडे के लिए आप हिल स्टेशन में गए, व्हाट हैपेंस मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? इफ यू ऑब्जर्व, यू इनहेल मोर। जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, देयर इज अ राइट सिचुएशन, योर बॉडी वांट्स टू मैन्युफैक्चर मोर, इट इनहेल्स मोर। व्हेन देयर इज अ बैड सिचुएशन, योर बॉडी वांट्स टू थ्रो आउट मोर, आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे। हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया। डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर। So is construction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. Will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा। थिंग दैट वी नीड टू गेट टू अ बैलेंस ऑफ प्रकृति
and Vikriti, a balance of regeneration and degeneration. And there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है. You feel damage, ना? You think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को. ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. The sparsha, rupa, rasa, gandha, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant, the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. सपोज एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body, और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the
local terminology. Nabhi, Kaudi, Nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना. आजकल diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? सांस रोकी आपने. Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा commitment ये होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, Pramana Sharira. प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम. प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार. डेंसिटी, इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके की वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज. दिस इज कॉल्ड एज सप्त धातु. 7 डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू की है आपके शरीर में. देयर आर 7 डिफरेंट डेंसिटीज, टिश्यू ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. दीज आर 7 डेंसिटीज. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. इफ द डेंसिटीज बिकम्स लेस, इफ यू लूज द डेंसिटी, योर ऑर्गन फंक्शनिंग विल नॉट हैपन प्रॉपर्ली. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? It has also relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there, है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation.
So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी. चलिए, you start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live.
If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions, muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट कॉल्ड एज मर्मा. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली मेक them मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. इफ योर मर्मस आर नॉट फंक्शनिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन. ऐसे मान के चलिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर टिश्यूज एंड सेल्स. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal का तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as अंगन्यासा and मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So functions which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement?
If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, how do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 80. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive
whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके?
Joint pain, it will impact the joint, yes or no? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से that is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे.
Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Madhuri ma'am to share her journey of Ashtang Chikitsa. Madhuri ma'am, am I audible to you? Thank you so much, ma'am, for joining in. Am I audible? Yes, ma'am. So, namaskar, good evening. My name is Madhuri Madhvapati. Namaste, ma'am. Yeah, so I am here to share my experience about Ashtanga Chikitsa. I am 58 years old today and I have lived a very healthy life throughout. My health problems have started about 5 years back when first I formed a kind of deformity on my left ankle and it was very painful. I was not able to walk properly. So no walking, no exercise. My life became very sedentary. And as if that was not enough, I developed a ACL tear after 2 years of having that deformity. So I was advised not to sit on the floor. And along with that, I had some other issues like constipation and I was not able to get good sleep at night. And I lost taste in my mouth. I was not able to enjoy food. So with this background, I joined Ashtanga Chikitsa about 30-35 days back. And I am noticing small little changes in my body posture. I'm doing Chikitsa consistently every day, but my body has limitations. And even with all that, I'm having some good experience, which I would like to share with you. One is I am able to walk in a straight line now. Earlier, I used to, when I used to walk, I used to go sideways. But now I'm able to walk in a straight line. When I sit on a chair, I can sit with my legs folded on the side. My constipation is gone. I am getting wonderful sleep at night, throughout the night, and I get up very fresh and energetic in the morning. I actually look forward to the morning and I have got my taste back. I'm enjoying food. My foot pain has reduced. So, in all, it's been a wonderful experience for me. So, I want to take this opportunity to thank Swamiji and his team for taking efforts to come up with such wonderful programs for all of us. Thank you. Thank you so much, Madhuri ma'am, for joining us today live in the webinar and sharing your journey of Ashtang Chikitsa. Now I would like to put it over to Anilji to share the program details. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. Yes. Let me share my screen. रचना जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरे? हाँ. Okay, great. Okay, so let us know about the Ashtang Chikitsa online program details now, which a lot of you may be waiting for. अब जल्दी से जान लेते हैं अष्टांग चिकित्सा के डिटेल्स, पूरा प्रोग्राम कैसे चलने वाला है, क्लास टाइमिंग्स, dates, and most interesting is how much fee it will be. This is the most interesting part that people wait till the end. Okay, let's go. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है, सुपरविजन के अंडर करना होता है आपको, और ये प्रोग्राम कुंभक स्वामी जी द्वारा ट्रेंड कुंभक मेंटर्स होते हैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम मॉड्यूल्स. देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम. पूरे प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स हैं, वात पित्त एंड कफ. मॉड्यूल 1, 2 and 3. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So 3 weeks per module into 3 modules makes it total of 9 weeks. 63 days का प्रोग्राम है, यानी 9 हफ्ते का. Now you will see here duration 9 plus 1. Why 1 week extra? We'll understand in a short while.
Then there'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class, and one will be the mentoring or the practice class. हर हफ्ते 2 क्लास होंगी आपकी, जिसमें से एक मेन क्लास होगी और एक प्रैक्टिस क्लास होगी। इसमें मेन क्लास और प्रैक्टिस क्लास में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, विल गेट टू अंडरस्टैंड इन अ शॉर्ट व्हाइल। ये क्या फर्क है दोनों में, मेन क्लास और प्रैक्टिस क्लास में, थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, आगे आप क्या करना है, you pay the program fee and there's a special webinar pricing for people who have stayed back. After that, you fill the participant onboarding form and then you start your classes starting with module 1 or the VAT module. तो ये क्या क्या इसमें स्टेप्स रहेंगे, आप प्रोग्राम फी पे करते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद तीसरा जो स्टेप होगा क्लास आप स्टार्ट करते हैं। टोटल क्लासेस अगेन मॉड्यूल 1 और वाथ मॉड्यूल के लिए 6 क्लासेस, 3 लर्निंग, 3 मेंटरिंग और 3 मेन क्लासेस और 3 प्रैक्टिस क्लासेस। सेम इज ट्रू फॉर मॉड्यूल 2 and module 3 also. So total 18 classes. 3 modules into 6 classes makes it 18. Now you see here 18 learning classes, total classes I mentioned in white, 18 लर्निंग क्लासेस प्लस 1 कस्टमाइजेशन क्लास। आप ये देख रहे हैं 18 लर्निंग क्लास लिखा है और एक कस्टमाइजेशन क्लास लिखा है। व्हाट इज दिस कस्टमाइजेशन, दैट टू यू विल अंडरस्टैंड शॉर्टली। बैच 127th इज स्टार्टिंग ऑन 24th April which is a Monday at 6:30 PM. बैच 127वां शुरू हो रहा है 24 अप्रैल से, जो एक सोमवार का दिन है, शाम के 6:30 बजे। मेंटर क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस, ये जैसे मंडे को क्लास होगी, सोमवार को क्लास होगी, तो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी थर्सडे को, 2 दिन का गैप के ऊपर। मॉड्यूल 2 में फ्राइडे को हो जाएगी प्रैक्टिस क्लास और मॉड्यूल 3 या फिर कफ मॉड्यूल के लिए शनिवार को हो जाएगी क्लासेस। We'll share all these details all the in the WhatsApp group as well as in chat here. So you need not worry about it. What is the class experience like? Class में कैसा experience रहता है? These are live sessions as you must have understood by now, where mentors watch all the participants. जो mentors हैं आपके, जो instructors हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, क्यों, और इसी वजह से आपको कैमरा ऑन रखना होता है। यू टू कीप योर कैमराज ऑन, दैट्स कंपल्सरी बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आपको कैमरा ऑन रखना है। सो यू नीड टू switch on your, keep your cameras on during the classes. Written instructions will be there in English and Hindi. लिखित निर्देश होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सेशन रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और आपको अवेलेबल कराई जाती है। काफी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे मेंटल प्रैक्टिसेस होंगी, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव होगा। ये डाइट प्लान नहीं है, माइंड यू, दिस इज नॉट अ डाइट प्लान, दिस इज अ डाइट पर्सपेक्टिव, because normally the diet plans do not work. Some people, some kind of food suits some people, but the same food is not suitable for the others. So there's a diet perspective. You'll get a video from Swamiji in which he'll be telling you about the basics of food, how to use food so that it does not harm your body. इस वीडियो में क्या होगा कि ये स्वामी जी का वीडियो होगा जिसमें बताएंगे स्वामी जी कि किस तरीके से खाने को इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके शरीर का नुकसान ना करे, राइट। देन देयर विल बी सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस, इसमें काफी डिटॉक्स प्रोसेसेस रहेंगे और काफी नॉलेज शेयर की जाएगी। लॉट ऑफ नॉलेज विल बी शेयर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। नाउ आई हैव रिटन सम ईयरली एक्सपेंसेस हियर। दीज आर एक्सपेंसेस दैट लॉट ऑफ यू मे ऑलरेडी बी डूइंग। ये मैंने कुछ साल भर के खर्चे लिखे हैं जो शायद आप में से काफी लोग ये कर रहे होंगे, जो आप जिस प्रॉब्लम में है उसको मेंटेन करने के लिए। दीज आर जस्ट टू मैनेज द प्रॉब्लम दैट यू आर इनटू। if you see doctor fee, you could be paying between 6,000 to 12,000 every year to the doctor visits. And then if you are into physiotherapy, अगर फिजियोथेरेपी आप कराती हैं तो 12,000 से 30,000 का शायद आप खर्चा कर रहे होंगे। Medicine, if you are, and then medicine may be costing another 15,000 to 30,000. तो अगर दवाइयां हैं तो उनके 15,000 से 30,000 का लगभग ये खर्चा हो रहा होगा। सो इफ यू टोटल ऑल ऑफ दीज 33,000 to 72,000 per year you could already be spending. And if you are into allopathy, we all know about the side effects of those, so we will not talk so much about them here. तो ये मैंने क्यों शेयर किया? Why have I shared this? Because you have to realize that in spite of spending so much of money,
on your medicines, on the treatment, doctor's fee, still there's not much relief. काफी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन इतना फायदा नहीं मिल रहा है. तो अब मैं जब आपको इस प्रोग्राम अष्टांग चिकित्सा प्रोग्राम की फी अनाउंस करूंगा, व्हेन आई अनाउंस द अष्टांग चिकित्सा fee, you'll compare it with the kind of expense that you are already doing. So that will be so economical that it's hard to believe that how can a therapy so effective can be so economical also. Also, it's important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है ये प्रोग्राम किन के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन के लिए है. Let's see. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Why we say this is because from childhood we've been popping pills only. हम बचपन से दवाई लेते आ रहे हैं. छोटी सी थोड़ी सी खांसी जुकाम होती है बच्चों को, आप भी देखेंगे अपने परिवार में, बच्चों को खांसी होती है तुरंत हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एलोपैथी डॉक्टर, तो वो तुरंत दवाई खा लेते हैं. हम शरीर को मौका नहीं देते हैं बीमारी से लड़ने का. सो टेकिंग अ पिल, टेकिंग अ मेडिसिन राइट अवे, वी आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग द immunity of this body. So that's become a habit now. So this is nothing like this. ऐसा इस थेरेपी में कुछ नहीं है, आपको दवाई नहीं मिलेगी. That is first. And this is not for those who are not ready to on their body, ready to work on their body, because you'll need 80 to 90 minutes every day to do your daily kriyas. आपको हर दिन 80 से 90 मिनट शुरुआत में देने होंगे अपनी सारी क्रियाओं को करने के लिए. अगर आप इतना समय नहीं दे पाएंगे तो ये शायद प्रोग्राम आप ना कर पाए. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. when we are in pain, when we are in some kind of a disease, the patience goes down. That's natural, but still we wanted to make it clear, please be patient, because this is not something that's magic. It will take some time. Okay. And this is a very important point. This last one, it's not for those who are looking for a free treatment or just some tips. ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जो एक फ्री ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं या कोई सिर्फ टिप्स ढूंढ रहे हैं. Because I'd like to elaborate a bit more here. We advertise on the Facebook about a therapy, about a free webinar which you are attending right now. Many people misunderstand that the therapy is free. So when we announce the fee, they ask us that why are we charging now? So just to make it clear that the webinar that you are attending right now is introductory. It's an introduction to Ashtang Chikitsa. ये Ashtang Chikitsa का एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार है जो आप अटेंड कर रहे हैं, विच इज फ्री, जो कि फ्री वेबिनार है. जो ट्रीटमेंट है, जो पूरा थेरेपी है, दैट इज अ पेड प्रोग्राम. ओके. दूसरी बात ये है, if you're just here to pick up some tips, this is not for you, because a holistic way of treatment can't be done through tips only. अगर टिप से प्रॉब्लम ठीक होनी होती तो YouTube में हजारों वीडियोस हैं, हजारों आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे. एक एक्सपर्ट कुछ बोलते हैं, दूसरे एक्सपर्ट शायद बिल्कुल टोटली उसका उल्टा बता रहे होते हैं. तो आप किसको यकीन करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे. सो यूट्यूब में वीडियोस हैं बट वो ट्रीटमेंट नहीं है. सो टिप्स वहां पे मिलेंगे आपको, बट ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म है वो अष्टांग चिकित्सा में आपको मिलता है. सो इसलिए ये मैं क्लियर करना चाह रहा था, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो. एंड प्लीज डोंट फाइट विद मी ऑल्सो by saying that why we are charging. You'll understand why. अब जानते हैं कि पूरे प्रोग्राम में होता क्या है, क्या मिलता है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. दिस अलोन कुड बी द total cost, worth the total cost of this whole program. Why? Because this is a diagnosis through which Swamiji can find out the root cause of your disease. I'd like to talk about in detail what exactly this is and how this is done. First of all, this is a non-medical diagnosis. Second, this is a online diagnosis. Now, both the things may sound a bit strange to you. Let me elaborate more. You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. ये प्राण शक्ति diagnosis होता कैसे है?
आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा आपकी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर, और वो नोट करना होगा फॉर्म के अंदर, एंड दैट यू विल हैव टू नोट डाउन इन द फॉर्म। सेकेंड, यू विल बी राइटिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल। आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपने डिटेल में लिखना होगा। थर्ड, यू विल बी अपलोडिंग अ सेल्फी फोटोग्राफ shoulder and above, in which the face should be clearly visible, and there has to be no specs on the eyes, and in case of ladies no makeup also। और तीसरी जो चीज प्राण शक्ति डायग्नोसिस में आप सबमिट करेंगे, एक अपनी सेल्फी फोटोग्राफ जिसमें आपका चेहरा बहुत ही साफ तरीके से दिखाई देता हो और आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में मेकअप भी ना हो। When these three things reach Swamiji, he is able to determine the root cause. If you paid attention to the now, Swamiji talks about the 84 forces. अगर आपने ध्यान दिया हो, स्वामी जी 84 फोर्सेस की बात करते हैं वीडियो में। तो इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस से स्वामी जी पता लगा पाते हैं कि आपकी जो आपके अंदर कौन सी इन 84 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए। तो दैट इज कॉल्ड प्राण शक्ति डायग्नोसिस। सेकेंड, वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स। हर हफ्ते आपको 60 से 90 मिनट की एक मेन क्लास मिलेगी। Why 60 to 90? 60 minutes is the actual duration. Then we take up questions. Doubts clearing session is taken up, and that's why it may take another 30 minutes. So it becomes 90 minutes. Weekly one practice class, 60 to 90 minutes, same. So 2 classes per week. Then online course access for 6 months. What is this online course access, and why is it for 6 months? As I told you, all the classes are recorded and they are uploaded to your course dashboard. You will get a login ID and password where all the recordings will be saved, which you can see and you can, watch again, because sometimes you forget also. So just for viewing later on, these through the course access, the video recordings are accessible. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration. Class recording पूरा जो 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन है क्लास का, वो रिकॉर्डिंग है। और ये वीडियोस अलग अलग क्रियाओं के हैं। These videos are of separate kriyas. So some kriya may take 2 minutes, 5, 10 minutes. So you need not go through the whole 90 minutes recording of the class. So videos of each kriya are also given separately. Sixth point, रिटर्न इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखित निर्देश भी मिलते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर डेली अपनी क्रियाओं के लिए फॉलो कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट इज द प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स एंड क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। व्हाई? ये like I said, there'll be 2 live classes. The remaining 5 days of the week, when you're practicing on your own, and if you have any doubt that time, so this is the group where you will be asking your questions and doubts. Our mentors are there in the group. They'll be answering all your questions and they'll be guiding you step by step. ये WhatsApp group, जैसा कि मैंने बताया, हफ्ते में 2 दिन आप लाइव रहेंगे हमारे साथ, बाकी 5 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप जो भी आपको सिखाया गया है। उस समय अगर कोई आपको किसी चीज में डाउट आता है, कोई आपके मन में सवाल आता है, तो इस ग्रुप के अंदर आपने पूछना है। हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, इस ग्रुप में ऐड होते हैं। वो आपको आपको सारी सवालों का जवाब देंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड फीडबैक। हर हफ्ते एक आपको ट्रैकिंग फॉर्म भरना पड़ता है ताकि हम जान सकें कि आप प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू आर नॉट progress. So that's what we use a progress tracking or feedback system. Ninth point is, and the second last point is, therapy customization for each participant in the 10th week. Please pay close attention. ध्यान दें इस point पर, बहुत important है। If you remember, I talked in the first point, I talked about the Pran Shakti diagnosis. Okay. Now, in the 10th week, your kriyas will be fine-tuned and customized as per the diagnosis that the form that you filled up, and Swamiji does the diagnosis. Based on this diagnosis, your therapy or kriyas will be fine-tuned and customized in the 10th week.
नाउ व्हाई 10th वीक? ये 10वें हफ्ते में आपकी थेरेपी को फाइन ट्यून क्यों किया जाता है, पहले हफ्ते में क्यों नहीं किया जाता? व्हाई नॉट इन द फर्स्ट वीक? देयर इज अ रीजन फॉर इट. In these 9 weeks, there are primarily 3 things that are being done. इन 9 हफ्ते में 3 मेन चीजें होती हैं, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 10वें हफ्ते में क्यों फाइन ट्यून की जाती है क्रियाएं. पहली जो चीज होती है, द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इन दिस 9 weeks इज योर वात पित्त एंड कफ इज बैलेंस्ड इन दिस 9 weeks. Second thing that happens is the structural alignment is done. There are 3 basic alignments. Swami ji ने वीडियो में भी बोला है, your inner thighs, navel and the chest. तो 3 alignments की जाती है. और तीसरी जो मेन चीज है, आपको controlled exhalation सिखाया जाता है. The third main thing that is done in these 9 weeks is you are taught controlled exhalation, because this therapy is based on controlled exhalation. और इसी वजह से अगर आप कपालभाति करते हैं, वो आपको मना किया जाता है कि आप 5-6 महीने ना करें, बिकॉज कपालभाति में फोर्स्ड एक्सहेलेशन होता है. या फॉर दैट मैटर, अगर कोई ऐसी ऑलरेडी आप क्रिया कर रहे हैं जिसमें फोर्स्ड एक्सहेलेशन है, तो आपने 5-6 महीने के लिए वो बंद कर लीजिए, राइट. एंड 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर 30 days आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. This is the only program where you get extended support for 30 days. ये क्यों देते हैं? Why this is done is because many a times, many people, they fail to attend the classes due to any reason, maybe due to some sickness or some other thing, some function in the family. So another 30 days are given. Clear all your doubts, ask any question that you may have, right? Now, program fee for Ashtanga Chikitsa, 14,500. With all the 10 points that I talked about, the diagnosis, the therapy customization, main classes, practice classes, the support in the WhatsApp group, the course access for 6 months, and everything is included in this. But as I promised you, there's a special webinar pricing for people who are still here. Let's see what that price is. Just 6,500 for the whole program. So the 9 weeks program, 18 classes, 1 customization class, all the 10 points that I talked about. This has been made so affordable that maximum people can afford it and take advantage of this. ये इतना सभी के लिए affordable बना दिया गया है ताकि आप इसका फायदा ले सके, right? And how to enroll? First step is to pay the program fee. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. After you post the receipt in the WhatsApp group, Neha is from our team. She'll confirm it, and then she'll send you further instructions and class join links. Step 3 is to fill the participant onboarding form that Neha will be sending you. And then step 4 is to join the class WhatsApp group, where you will get the support, where you can ask your doubts and your questions, which I just talked about. And then step 5 is to start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. Simple 5-step process. Payment methods ये already share कर दिए जाएंगे. And I'd like to stop here and talk about the super team that we have, which will be at your service. We don't call ourselves a super team. Our participants call us that because the kind of support and the kind of hand holding that our team does. So let me start with Rachna Shirmala Bhutra. She is the program director and she is the host of the program, today's webinar also. Then we have Shalini Bhagwat. She is the class manager. She takes care of the batches, the timings and everything. Ashwini Kumar, he is the IT manager. Then we have a lot of mentors. Ranjana, R.D. Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Suruchi, Arundhati, Meera, Sushma. Why so many mentors? Because we understand this is an online program and things are a little difficult at times and a bit different also than offline classes. So we try to give as much attention as possible to all the participants so that every participant's question is answered, every participant is attended to. So that's why a proper team of enough mentors to take care of you during the program. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge. She'll be the person who you'll be talking to the most before you start your classes. Then Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp admin and I'll answer all your questions in the WhatsApp group.
because now Swamiji will be coming live shortly and answering all your questions. But due to shortage of time, he may not be able to take all the questions. But please do not feel bad about it. Please do not fight with us. Okay, please don't leave the group, because many times somebody's question was not taken. They left the group that, oh, my question was not taken. Please don't do that. Otherwise, you lose some very important information, and you may not may be able to take advantage of this program. I'll answer all your questions. If it's not taken here by Swamiji, you can ask in the WhatsApp group. No problem. Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who uploads the videos, the written instructions, and he helps you install your app through which you can watch the videos. Then we have Anita ji. She's the personal support executive. She'll be calling you. You may expect a call from her during the program, because she calls about 20 to 30 people every day, all the participants. So just to check if your program is going okay, if you are facing any problem, so you arrange a support or a callback from our mentors. And with this, I come to the end of my part of the presentation. Thank you everyone for listening to me patiently, and I hand over the webinar back to Rachna ji. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. I would like to now invite Umesh ji, our participant who would be sharing the program details. Who would share his journey of Ashtanga Chikitsa. Umesh sir, am I audible to you? Yes. Can we have him on spotlight? Thank you, sir. Yes. Yes. Good evening, everybody. My journey with Good evening, Avisha. sir. Hello. Yes, Good sir. evening, You're audible. Yes. Okay. Thank you. Good evening, everyone. I began my journey with Avisha from January 31st, 2023. I took more than 3 months to take the decision to join the Kumbhak therapy, but ultimately I realized that it was a good step to join the course. It was a fruitful journey for about 9 weeks with Avisha Group. In fact, you'd be surprised that I've joined this course at the age of 75 years. Not a very young age to join any such new courses, actually. And at the time of joining, I had various problems such as blood pressure, diabetes, knee pain, back pain, and BP, diabetes. I have prostate gland, and I had undergone angioplasty also, and I had a paralytic stroke also in 2014. But I've overcome all these things. But I'm on a strict medication, which cost me about 6,000 to 7,000 rupees. Besides, I have to consult doctors every 3 months, which alone costs 3,000 rupees as my fees, which is a high amount for a middle-class persons like us, actually. During the 9 weeks course, Swamiji takes personal interest every week to explain and demonstrate various kriyas, and subsequently coordination with participants to train and explain is done by various mentors. They also devote a lot of time. As Anilji had said, the course timings, online timings is between 60 minutes to 90 minutes. But actually, I observed at times it takes even 1.5 hours to 2 hours because of the interest shown by the mentors, which is highly commendable, actually. Now, after joining the course, I found that my knee pain, back pain is considerably reduced by 90 to 95%. I was doing physiotherapy daily, which also I have stopped completely now. I'm doing the kriyas, and I am happy with the progress I have made. And my weight was also considerably reduced by 3 to 4 kg during this period.
And about the other parameters, I will get it checked only after 2-3 months, because I know it's not a magic course that we expect everything to be get settled within few days or few minutes, which most of us think before joining the course. But we should have patience, do kriyas dedicatedly, and do it properly, and mentors are there to support us everything. I wish all the participants who are here should take the advantage of this course by joining, and I'm sure they'll be benefited the most. Thank you. Thank you so much, Umesh ji, for sharing your journey of Ashtanga Chikitsa and inspiring our participants for a better life ahead by working on their own breath. Thank you so much once again. Okay, Swamiji has joined in, so we will just take up our questions. Namaste, Swamiji. Good evening. So Kusum Thakur talks about arthritis. What is arthritis? Now, if you want to see or decipher a disease by looking from outside, these are symptoms that you are describing. This is not the disease you are describing. जब आप आर्थराइटिस बोल रहे हैं तो आप कोई बीमारी नहीं बता रहे, आप किसी प्रॉब्लम का एक रिजल्ट बता रहे हैं. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आर्थराइटिस कहते हैं. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ डिजीज. व्हाई आर्थराइटिस हैपेंस should be the real reason. So why arthritis happens? Why inflammation happens? First of all, inflammation जिसे हम arthritis कह रहे हैं, itis या inflammation क्यों होता है? Because by deciphering, by knowing inflammation, body starts treating the inflammation. कहीं पे आपको चोट लगता है ना, तो वहां पे थोड़ा सूजन आएगा, थोड़ा रेडिशनेस आएगा, है ना, थोड़ा पेन आएगा, ज्वलनशीलता आती है. दैट इज आइटिस, इन्फ्लेमेशन. तो वो लोकलाइज होगा तो बॉडी को पता लगेगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा. बट व्हाई इट इज हैपनिंग? आपको चोट नहीं लगी, अंदर अंदर से ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है. तो अंदर से इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? You need to understand why arthritis is happening. So I'll give you few reasons why arthritis is happening. और इस reason को अगर हम ठीक कर सकें, if we correct the reason, arthritis will not happen. ठीक हो जाएगा ये. चलेगा ना? इतना बोले तो चलेगा ना? Arthritis बोलने से किसी का solution नहीं होता. There is no medicine which can cure arthritis. क्योंकि आपने बीमारी नहीं बताया. तो ये बाहर से तरीका देखने का ना, ये पाश्चात्य तरीका, वेस्टर्न मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट अ ट्रीटमेंट मॉडल, इट्स अ मैनेजमेंट मॉडल. थोड़ा सा कुछ ऐसे डाल के उसको थोड़े समय के लिए दर्द कम कर दिया, मैनेजमेंट मॉडल, ट्रीटमेंट नहीं. तो क्यों होता? व्हाई आर्थराइटिस, व्हाई इन्फ्लेमेशन विल हैपन? तो बाहर से इन्फ्लेमेशन कब होगा? जब आपको चोट लगेगी ना, खरोंच लग गया, चोट लग गया, केमिकल डाल दो, स्किन पे केमिकल डाल दो, जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा. यही है ना? तो आपको लगता है कि आप अपने शरीर के अंदर केमिकल डालेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर केमिकल डालो, खूब सारा केमिकल डालो और फिर बोलो कि देखो यही ट्रीटमेंट है. सो एक छोटा बेबी, 2 kg, लेस देन 2 kg, लिटिल मोर देन 2 kg जब बेबी होता है तो कितना इम्यूनाइजेशन का कितना शेड्यूल होता है उसका? 24, 25, 26, कितने सारे केमिकल डालते हैं उसके अंदर. वहां से शुरुआत करते हैं. और आपके घर में एक पूरा का पूरा बैग होगा ना दवाई का, दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, ये सब तो घर में होना ही चाहिए. ऐसा आपको दिमाग में, फर्स्ट एड किट का मतलब केमिकल्स होने चाहिए, केमिकल से बम्बार्ड करो. इसको फर्स्ट एड किट बोलते हैं. तो योर बॉडी रेस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग दैट यू पुट इनसाइड. आपने शरीर में कुछ भी डालते हैं, आपका शरीर रेस्पॉन्ड करता है. कार्बोहाइड्रेट डालेंगे तो इंसुलिन निकलेगा. आजकल नहीं निकल रहा, प्रॉब्लम आ रही है ना,
है ना, भोजन डालेंगे तो थायरॉक्सिन निकलना चाहिए, थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा तो बाहर से थायरॉक्सिन खा रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है। अगर कोई खतरा आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरीके का रिस्पॉन्स हो रहा है, फूड का रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरीके। जब आप केमिकल डालते हैं तो वो आपका भोजन नहीं है तो खतरा बन जाता है, तो ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बार बार डाउन करोगे, ये खराब करेंगे आप, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या क्या है वो? डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई भी मेंटल डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से शुरू होता है, वहां से शुरुआत होती है। तो आपने एक जो चीज गलत कर दिया वो ये कि आप अपने शरीर के अंदर वो चीज डालने लग गए जिसके लिए आपका शरीर बना ही नहीं। तो केमिकल जब शरीर में जाता है तो बॉडी क्या करता है, उसको खतरे की तरह से ट्रीट करता है और इन्फ्लेमेशन होता है। और क्या क्या चीजें होती हैं? यूरिक एसिड बढ़ता है आपके बॉडी में। और क्या क्या चीजें होती है? लिवर को खराब असर होता है, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों कर रहा है? बचा रहा है लिवर बेचारा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप खरोच मारेंगे, थोड़ा घी लगाएंगे तो जलन कम होगा ना, वही लिवर भी आपका घी लगा रहा है, फैट क्रिएट करके घी लगा रहा है, क्योंकि जलन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप उसे गलत बोलते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी के आइटिस को कम कौन करता है? एक चीज होती है, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ट्राइग्लिसराइड से बनता है। तो आपका शरीर कोर्टिसोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए? फिर आप क्या बोलेंगे? अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, गलत हो गया, फिर आप स्टैटिन खाने लग जाओ, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर दोगे। ठीक है, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरीके का इन्वेजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गए, कोरोना घुस गया, ये कोई और वायरस घुस गया, तो आपका शरीर ठीक कैसे करेगा? थोड़ा हीट बढ़ाएगा, फीवर करके इसको ठीक कर देगा। मगर आप फीवर कम कर दोगे ना, डोलो खाओगे, पैरासिटामोल खाओगे, फीवर कम कर दोगे। उल्टी आएगी तो उल्टी बंद कर दोगे, हाँ, खांसी आएगी तो खांसी बंद कर दोगे, दस्त आएगा तो दस्त बंद कर देंगे, दर्द आएगा तो दर्द बंद कर देंगे। तो अपने बॉडी को टॉर्चर करने को जब आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, अपने शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, तो अब कौन बचाएगा? इसको बताइए। ट्रीटमेंट का मतलब ही टॉर्चर करना है बॉडी को, तो कभी तो ये गिव अप करेगा ना, कभी तो ये छोड़ेगा। आप किसी को टॉर्चर करके देखिए, या तो वो कहेगा इंसान अब मार ही डालो मुझे, छोड़ो, या तो वो रिवोल्ट करेगा, आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे चक्कर में इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जी, आपका इम्यूनिटी आपको ही खत्म कर रहा है। तो पहला रीजन, केमिकल डालना बंद कीजिए, अपने शरीर के अंदर केमिकल डालना बंद कीजिए, अपने शरीर के ऊपर केमिकल डालना बंद कीजिए। मेडिसिन इज क्रिएटिंग ऑल दिस हैवक। अब दूसरी चीज, अब मेडिसिन के बगैर आपके अंदर शक्ति नहीं, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो सहन शक्ति बिल्ड करना पड़ेगा, झेलने की क्षमता बिल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे बिल्ड करते हो? कोई वेट उठाएंगे, उसको सहन कैसे करते हैं? सांस रोकते हैं ना, तभी उठा पाते हैं। तो कुंभक करके आप अपना सहन शक्ति बढ़ाते हैं, रेजिलियंस बढ़ाते हैं। तो अब एक ये सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, दवाई छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो फिर ऐसे छोड़ के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बिल्ड रेजिलियंस। कुंभक करिए, फिर धीरे धीरे देखेंगे आप दवाई वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन कुंभक करके ही आपके बॉडी में रीजेनरेशन होता है। आइटिस का एक और पक्ष है, डीजेनरेशन बॉडी में ज्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। वही आर्थराइटिस आपके, उसको आसान शब्दों में क्या कहते हैं, आपके जॉइंट का जो लुब्रिकेशन है वो कम हो गया है ना, ग्रीस घिस गई है, जो कार्टिलेज है घिस गया है, यानी घिस गया है। का दूसरा पक्ष क्या है? रीजेनरेट नहीं हो। रीजेनरेट तो होता ही है ना आपके शरीर में, बनता तो है, बन नहीं रहा, क्योंकि आपका लिवर ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं, तो बन नहीं रहा। तो रीजेनरेशन कैसे होता है? एक काम कीजिए, 5 किलो का एक डंबल उठाइए एक हाथ से रोज। आप क्या देखेंगे कि 1 महीने के बाद में वो जिस हाथ से वेट उठा रहे हैं ना, उसमें वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, उसमें मसल बढ़ गए, तो रीजेनरेशन हो गया।
मगर आपने वेट कैसे उठाया? सांस रोक के ही तो उठाया ना। तो कुंभक से रीजनरेशन बढ़ेगा, ग्रीस जो घिस गई है, जो कम हो गई है, वो बननी शुरू होगी। ठीक है, रीजनरेशन फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे इंप्रूव होता है, रीजनरेशन होगा तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन एक और पक्ष है इसका कि अगर बॉडी में टॉक्सिन कम हो जाए तो भी आपको आराम मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब भी खतरा आता है, आप देखेंगे, ये काम करके देखिए, अगर आपने कभी एंटीबायोटिक नहीं लिया, 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स ले लो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जिस दिन आपके परिवार में कोई खतरा या कोई सिचुएशन खराब आती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आप शायद अपने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर एनवायरनमेंट में कुछ खतरा ऐसा लग रहा है आपके शरीर को तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड, वो डिटॉक्स फैक्टर उसका वीक होता है। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है तो उसको डर नहीं होगा। लोगों को आजकल एंजाइटी बहुत होती है क्योंकि आप डरा रहे हैं शरीर को, दवाई डाल के डरा रहे हैं। फूड इज केमिकली लोडेड, आपका प्रोसेस फूड केमिकली लोडेड है। आप क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, वो खुद ही खतरा है आपके शरीर के लिए। तो खतरे में आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है और इम्यून रिस्पांस बढ़ता है, जिसको भी आप क्या बोल देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रिमोटाइड जिसे होता है ना, रिमोटाइड आर्थराइटिस, क्या हो गया? बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये तो हमने ही क्रिएट किया। अगर आपकी सहन शक्ति ठीक होगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो कुंभक करके आप अपना इम्यून रिस्पांस को ठीक करेंगे, मेटाबॉलिक रिस्पांस को ठीक करेंगे, तो क्या होगा? रीजनरेशन होगा, डिटॉक्स फैक्टर मजबूत होगा। तो जो टॉक्सिन्स हैं वो भी निकल जाएंगे आपके शरीर में से, तो भी दर्द कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अगर देखें तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो भी आपको आराम मिल जाएगा, चलने में आसानी हो जाएगी, आपको जितनी तकलीफ हो रही थी वो नहीं होगी। जो घिसना है वो तो टाइम लेता है, लेकिन आराम आपको जल्दी मिल सकता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स मैंने बताया जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। तो पहली बात तो उसको हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन ड्रॉप कब करेंगे? दवाई तो छोड़ नहीं सकते ना, दर्द होगा तो क्या करेंगे? दर्द की गोली खानी पड़ेगी। लेकिन अगर शरीर को इस लायक बना दें कि उसके ये मेटाबॉलिक रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस ठीक हो जाए, जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बॉडी का सहन शक्ति बढ़ जाए, तो आप देखेंगे कि उतना आपको दर्द नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। तो दवाई कम होती जाएगी, जैसे जैसे रीजनरेशन होगा आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, आप ज्यादा काम कर पाएंगे पहले से। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर कुंभक करना शुरू करेंगे तो ज्यादातर लोग, बल्कि मैक्सिमम लोग ये देखेंगे कि उनका पहले जितना काम करने की क्षमता थी उससे 2 से 3 गुना तो बढ़ जाएगा, 100% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस हुआ, जो मेटाबॉलिक वीकनेस है, जो इम्यून रिस्पांस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हुआ, उसको हम ठीक कर रहे हैं थ्रू कुंभक से। तो आर्थराइटिस में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने बहुत समय तक स्टीरॉयड खाया होगा, बहुत समय तक स्टीरॉयड खाया होगा। स्टीरॉयड खाने के बाद में आप क्या करते हैं? आपके शरीर की जो कैपेसिटी है अपने को बचाने की, उसको खत्म कर देते हैं। स्टेरॉइड खा के क्या करते हैं? आपके शरीर जो अपने आप को बचा पाता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है अपने को बचाने की, वो खत्म कर देते हैं। तो जिन्होंने लंबे समय तक स्टेरॉइड खाया है उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर स्टेरॉइड तो कोई इलाज नहीं है ना, स्टेरॉइड तो इलाज नहीं है ना, मैनेजमेंट है। तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जानी है, ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन खराब होगा, फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आईसीयू में लैंड कर जाएंगे। स्टेरॉइड खा के कोई ठीक तो हुआ नहीं आज तक। तो आपको ये सोचना है कि अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड खाया है तो आज ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और अगर 1 साल 2 साल के बाद भी आप ठीक हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है ना। नहीं तो 1-2 साल 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में बिस्तर पे पड़ जाएंगे। वो अच्छा है या ठीक होना अच्छा है? ये तो आपको करना चाहिए ना, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए कि नहीं। आपने नुकसान किया अपने बॉडी का, टॉर्चर किया इतना, तो रिहैबिलिटेशन करना है कि नहीं करना? तभी तो लाइफ आपकी अच्छी हो। वो कुंभक से ही कर सकते हैं, वो आपके अपने बॉडी की ही एक तरीका है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, वही कुंभक है। हम कोई दवाई तो नहीं दे रहे बाहर से आपको। तो अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा करें, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा करें, ऑर्गन को स्ट्रांग करें, ऑर्गन फंक्शन को इंप्रूव करें,
तभी आर्थराइटिस और इस तरीके की डिजीज, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, रूमेटाइड हो, तभी ठीक होगा। क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, 100% ठीक हो सकता है, मगर दवाई से नहीं हो सकता। Ankit sir talks about ankylosing spondylitis. एक ही बात, मतलब आप कुछ अलग नाम रख दिया, आप एक चीज ठीक नहीं कर पाते, दूसरा नाम बता देते हैं। अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बताया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? आप पूछो अपने डॉक्टर से, पूछा तो करो कम से कम। ये है कि आपने नाम तो रख दिया। आप भी अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन करो तो कुछ भी नाम रख दो, पप्पू, चप्पू, टप्पू, कुछ भी नाम रख दो। नाम रखने से क्या हो जाता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल दिया, ये स्पॉन्डिलोसिस बोल दिया, है ना? आप पूछा तो करो ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है और ठीक होता है क्या? तो आंसर आएगा ठीक तो होता नहीं है जी। तो आपने नाम रख के कोई बड़ा तोप कर दिया क्या? तो इस नाम के चक्कर में ना फंसे। आइटिस मैंने बताया, आइटिस पढ़ा था ना, इन्फ्लेमेशन, तो वो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। क्यों हो रहा है वो ठीक करना पड़ेगा। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर आप अगेन वापस आ जाइए, अपना रीजनरेटिव फैक्टर, इम्यून रिस्पांस को सही करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, है ना? इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी क्या इसको लेके बात करें, कितना भी बात कर लेंगे फिर भी आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा काम करें अपने शरीर पर, ठीक हो जाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kishore Raje sir talks about from last 6 years spinal stenosis, cannot walk for more than 500 steps. अच्छा, फिर बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। ये अंग्रेजी के वर्ड आपको घुमा देते हैं। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? स्टेनोसिस जब हम बोल रहे हैं, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? हार्ड हो गया ना। आप अपने अपने बुद्धि से समझिए, स्टेनोसिस का मतलब हार्ड हो गया। तो एक काम करें, जरा एक्सपेरिमेंट किया करो, आप लोग सब एक्सपेरिमेंट किया करो, उससे आपको समझ आएगा और अच्छा समझ आएगा। एक पेड़ पे जाएं और एक टहनी तोड़ लें, हरी भरी उसका एक स्टेम है ना, उसकी टहनी तोड़ दें और उसको धूप में छोड़ दें। टहनी ना लचीली होती है, उसको धूप में छोड़ दें, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे हार्ड हो गया, स्टेनोसिस हो गया। अब मुझे बताइए क्यों हो गया, हार्ड क्यों हो गया? कोई कारण हार्ड होने का? हार्ड क्यों हो गया? वो उसमें से पानी निकल गया, पानी निकला कि नहीं निकला? आपने कैमरा भी बंद रखा, मैं आपके फेस का एक्सप्रेशन भी नहीं देख पा रहा। ये कैमरा तो खोलो करो, पता तो चले आप कुछ सोच रहे हैं कि आप वो टहनी हार्ड क्यों हो गई? पानी निकल गया ना, पानी निकला तो हार्ड हो गया। तो कोई भी कहीं भी स्टेनोसिस होगा, हार्डनिंग होगा तो क्यों होगा? वहां पे जल तत्व की कमी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, तो हार्ड हो जाएगा। तो एक चीज आप देखिए, हमारे आसपास में फ्रेश वाटर सोर्स कहां पे है? कहीं ताल, तालाब, सरोवर, नदी आपने देखा आसपास में? पानी देखा? पानी तो खत्म। आपके आसपास में है तालाब, फ्रेश वाटर बॉडी कोई है क्या? जमीन के नीचे पानी है? जमीन के नीचे पानी है? कितनी दूर चला गया पानी? फ्रॉम 50 फीट टू 5000 फीट, ठीक है ना? तो पानी ही कम हो गया आपके आसपास में। पहली चीज, ऐसा काम हमने किया कि अपने आसपास में जो जीवन का सोर्स है उसी को खत्म कर दिया। यही होता है फिरंगी मॉडल ऑफ एजुकेशन और साइंस, कि एनवायरनमेंट को खत्म कर दो, इंसान को खत्म कर दो, क्योंकि सबसे कम बुद्धि की प्रजाति है वो, सबसे कम बुद्धि की प्रजाति है फिरंगी। अब हम उसी के मॉडल में पढ़े लिखे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। तो आसपास आपने पानी खत्म कर दिया, अब बॉडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने कम कर दी। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे शरीर का पानी का रोकने का जो शक्ति है वो हमने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? आप एक काम करें, आज शरीर के अंदर कोई भी उल जुलूल चीज अगर आप डालते हैं तो एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा।
क्या होगा? बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपको दवाई भी ऐसे दे रहे हैं, आपके शरीर का पानी निचोड़ने की दवाई दे रहे हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो क्या क्या खाते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर खाते हैं, लो सार्टन पोटेशियम, टेलमी सार्टन पोटेशियम, ऐसी कोई चीज खाते हैं। ठीक है, डायूरेटिक खाते हैं। उससे क्या होता है? आपके शरीर में ब्लड का पानी जो है किडनी से जबरदस्ती निकलवा दिया जाता है, तो आपका शरीर सूख रहा है। आप एक काम करें, एंटीबायोटिक खाएं 5 दिन, आप देखेंगे आपके शरीर में ड्राइनेस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आप जो भी केमिकल डालते हैं शरीर के अंदर, प्रोसेस फूड डालते हैं, उससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि शरीर पानी में उस जहर को घोल के, वो जहर समझता है शरीर, घोल के बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो गलत शुगर बनेगा, ठीक शुगर नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो उस ग्लूकोज को शरीर क्या करेगा? प्यास लगाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके भगा देगा, बाहर निकाल देगा अपने को बचाने के लिए। आप क्या करोगे? मेटफॉर्मिन, रोजिग्लिटाजोन, पाइग्लिटाजोन, अकारबोज, गिबेनक्लामाइड, ग्लाइकोलाइड, ऐसा कुछ खा लोगे और उस गंदे शुगर को अपने ऑर्गन में डाल दोगे, तो आपके ऑर्गन खराब हो जाएंगे। बोलोगे देखो डायबिटीज से ऑर्गन खराब हुआ, डायबिटीज से कोई ऑर्गन खराब नहीं होता, आपकी दवाई से खराब होता, क्योंकि आपने वो गंदा शुगर अपने ऑर्गन में घुसा दिया, बाहर निकाल देता शरीर, वो नहीं निकालने दिया। क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, आपको वो भी बंद करना है। आपको प्यास लग रही है, वो भी बंद करना है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ये सही बात नहीं है। मुझे ज्यादा यूरिन होता है, सही बात नहीं है। तो कुछ भी शरीर करता है तो सही बात नहीं है। तो आप शरीर में जब भी दवाई डालते हो किसी तरीके की भी, तो आपके शरीर का वाटर एलिमेंट कम हो जाता है और इससे हार्ट पे लोड पड़ता है। जब भी पानी कम होगा, ब्लड प्रेशर की दवाई खाओगे इस तरीके की, जैसा मैंने बताया, तो आपके हार्ट जो है वो उस पर लोड आ जाएगा और हार्ट अटैक होगा। तो हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया दुनिया में। क्यों बन गया है? 100 साल पहले तो नहीं था, हार्ट अटैक होता नहीं था, नेचुरल हार्ट डिजीज नहीं होता था। अभी क्यों हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया? क्योंकि आप दवाई खा रहे हो, क्योंकि आप पानी कम कर रहे हो शरीर का। और क्या क्या चीजें होंगी? हार्ट अटैक नंबर 1 चीज है जो कि हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट खराब होगा, ये पानी कम होगा तो ये होगा ही। दूसरी चीज क्या होगी? स्टेनोसिस होगा ना, पानी कम हो गया, सूखेगा, मसल सूखेंगे। जॉइंट पे जब सूखने का असर होगा तो कहेंगे आइटिस, घिसावट आएगी, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कहेंगे आर्थराइटिस हो गया। जब भी शरीर सूखेगा आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है डिविएट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देंगे। तो आप अपने शरीर को सुखा के बीमारी क्रिएट कर रहे हो, फिर कर रहे हो देखो ये बीमारी हो गई। स्टेनोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बनेगा? होल्ड करना है, कुंभक है ना, होल्ड करने का मतलब, रोकने का मतलब कुंभक होता है। तो जब ये रोकने की कैपेसिटी आप बढ़ाओगे तभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तभी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक होगा, तो स्टेनोसिस ठीक होगा। एक चीज आप देखेंगे, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करो। आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग, आप मानने को तैयार नहीं हो कि आप बुद्धिमान हो, वो अलग बात है, क्योंकि आप हर चीज के लिए गूगल देखते हैं। मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी, गूगल बताओ मुझे जरा। आजकल तो ये भी होने लग गया कि लोग जानते ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। वो कहते हैं मुझे क्या खाना है। अरे आपका शरीर बोलता है मुझे ये टेस्ट खाना है, मुझे चटपटा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तीखा खाने का मन कर रहा है, मगर वो भी नहीं आप मानते अपने शरीर की बात। वो भी आप गूगल सर्च कर रहे हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी आपका शरीर बोलता है उसके लिए गूगल सर्च कर रहे हो। कम से कम इतना गिरना नहीं चाहिए इंसानियत को, बुद्धि से इतना नहीं गिरना चाहिए। हाँ, आपका शरीर जो बता रहा है वो सही बता रहा है। सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आपका बॉडी है। तो स्टेनोसिस कैसे ठीक करेंगे? आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। क्या एक्सपेरिमेंट करो? आप थोड़ी थोड़ी देर, जितना आपकी कैपेसिटी है, सांस रोकना शुरू करो, 10 मिनट के लिए रोको, और ऐसा आप 3-4 दिन करिए। उसके बाद चेक कीजिए, ये जो आपके कोहनी है ना, यहाँ पे हार्ड होता है ना, हार्ड टिश्यू होते हैं, कोहनी पे हार्ड टिश्यू होते हैं। कई लोगों के कंधे पे हार्ड टिश्यू आ जाते हैं, बॉडी में किसी जगह पे हार्ड टिश्यू है। आप कुंभक करना शुरू कीजिए, देखिए वो हार्ड टिश्यू एकदम से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या बता रहा हूं कि सबका ये एक एक्सपीरियंस है जो भी कुंभक कर रहा है। जॉइंट्स जिनके भी फ्लेक्सिबल नहीं है उनके जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। ये तो आप 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट आप सांस रोको, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सांस रोक के छोड़ो, सांस रोक के छोड़ो। उसके बाद आप बेंड करने की कोशिश करें। देखिए पहले जितना बेंड कर रहे थे उससे ज्यादा बेंड करना शुरू बेंड कर पाएंगे, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट की बढ़ गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्किन का टोनालिटी, टोन
ठीक हो जाएगा। एंटी एजिंग भी होता है, जो भी कुंभक करेगा उसे एंटी एजिंग होगा, मगर 80 साल का इंसान 16 साल के बनने की कोशिश ना करे। ये ना सोच में बहुत गलत चीज आ जाती है ना। एजिंग सुंदर होना चाहिए, मगर ये कोशिश नहीं करें कि मुझे वही काम करने हैं जो मैं 16-20 साल के एज में करता था या करती थी। ये गलत सोच है, आपने जिया नहीं ठीक से जीवन, है ना। मगर एंटी एजिंग होगी, पक्की बात है, 100% एंटी एजिंग होगी। आपके स्किन पे दिखेगा एंटी एजिंग, है ना, स्किन पे आपका एंटी एजिंग दिखेगा। मैं 50 साल का हूं, ठीक है ना। तो एक प्रूफ के साथ में देखिए कि आपका एंटी एजिंग भी होगा। स्किन में जहां पर भी हार्ड पार्ट्स हैं आपके बॉडी में, वो सब सॉफ्ट हो जाएंगे। बटक्स पे हार्ड होता है ना, आप कुंभक करेंगे देखेंगे सॉफ्ट हो गया। कोई भी आपके स्टेनोसिस या फिर कहीं पर भी हार्डनिंग हो रहा है, जॉइंट स्टिफनेस है कहीं पर भी, वो एकदम से ठीक होता है। ये तो आप खुद करके देख सकते हैं। बट बात यह कि ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपके शरीर में सभी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। हार्ट अलग काम नहीं करता, मसल्स अलग काम नहीं करते, लिवर अलग काम नहीं करता। तो लिवर हार्ट के साथ में काम करेगा, हार्ट मसल के साथ में काम करेगा, मसल किडनी के साथ में काम करेंगे, किडनी लंग के साथ में, सब एक साथ काम करते हैं। इसलिए आपके शरीर को अलग अलग ऑर्गन की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे कोई ठीक नहीं होता। एक एग्जाम्पल आपको प्रूफ दे रहा हूं कि आपका किडनी खराब हुआ तो क्या बोलेंगे डॉक्टर? किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर खराब हुआ तो क्या बोलेंगे? लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। हार्ट खराब हुआ तो क्या बोलेंगे? हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो। घुटने खराब होंगे तो क्या बोलेंगे? घुटने बदलवा लो। यानी ठीक तो कुछ करते ही नहीं, कुछ भी ठीक नहीं करते, तभी तो बदलवाने की बात चल रही है। तो आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं अपना। दवाई कोई ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। एंड केवल हम अगर इन्फेक्शन को छोड़ दें, हटा दें, तो दवाई कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इन्फेक्शन को हटा देते हैं, दर्द की दवाई हटा दीजिए, कोई भी दवाई काम करती है उसके अलावा? कोई भी दवाई काम नहीं करती। तो ये क्या सोच रहे हैं आप? किस तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ट्रीटमेंट तो ले ही नहीं रहे, मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, बहुत सिचुएशन खराब होगी, मैनेजमेंट कर लो, पर ट्रीटमेंट तो करो साथ में, उसी से तो ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Stiffness, morning stiffness in joints, shoulder pain, knee pain. मॉर्निंग स्टिफनेस इन जॉइंट, शोल्डर पेन एंड नी पेन। अच्छा, ये सारी एक ही बात है, मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं केवल। तो आपके शरीर में 3 हिस्से होते हैं, और बहुत आसानी से समझिए इस तरीके से। हालांकि ये समझाना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी से आपको थोड़ा सा कुछ बताया जा सके, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपके शरीर का ऊपर का हिस्सा जो होता है, छाती से ऊपर का हिस्सा, इसे कफ प्रकृति का कहते हैं। छाती और कमर के बीच का हिस्सा जो है पित्त प्रकृति का हिस्सा होता है, और कमर से नीचे वात प्रकृति का हिस्सा। तो कफ प्रकृति यानी कफ प्रकृति का जो भी इंसान होगा, उसके अंदर स्टिफनेस ज्यादा होती है। अगर 2 कैटेगरी हम देखें और जनरलाइज करें कि मेल और फीमेल, तो फीमेल कफ प्रकृति की होती है ना, तो उनके अंदर बड़ी जल्दी स्टिफनेस आती है। और आप देखेंगे कि केवल एक जनरलाइज, फॉर द सेक ऑफ जनरलाइज, ताकि आपको आइडिया लगे, तो आपके शरीर में चिकनाई जब भी ज्यादा होगी, जो चमक ज्यादा होती है, जैसे कहते हैं ग्लोइंग चीज जब भी ज्यादा होती है, तो उसका वो कफ होता है। लेकिन कफ आपके शरीर में रुकावट भी पैदा करता है। जब भी कोई रुकावट पैदा करेगा, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा? स्टिफनेस, यानी कि मूवमेंट में रुकावट आएगी। मूवमेंट में रुकावट को ही हम स्टिफनेस कह रहे हैं। और वो ठंड, जितना भी ठंडा होगा शरीर, उतना वो बढ़ जाता है स्टिफनेस। जैसे ही गर्म होगा, पिघलेगा, वो कफ और स्टिफनेस कम हो जाती है। इसीलिए जब थोड़ा मूव करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे जॉइंट्स को, तो स्टिफनेस कम हो जाती है ना। सुबह का हिस्सा दिन का सबसे ठंडा हिस्सा होता है, और सुबह सुबह सबसे ज्यादा स्टिफनेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग, स्टिफनेस जिनको ज्यादा है, वो अगर थोड़ा चलेंगे, थोड़ा बॉडी को मूव करते हैं, तो उनको स्टिफनेस में आराम मिलता है। इसका मतलब कि उनके अंदर मतलब मूवमेंट में ब्लॉक आ रहा है कफ के कारण, कफ प्रकृति के कारण।
और वो ठंड की वजह से बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, शरीर में अगर गर्मी बढ़ाने की क्षमता, मेटाबॉलिक हीट या गार्हपत्य अग्नि, मेटाबॉलिक हीट पचान, इनके वो एक और चीज देखेंगे, उनके पाचन की क्षमता, हीट भी कम होती, भूख भी ज्यादा नहीं लगती, खुल के भूख नहीं आती है, या फिर ऊर्ध्वगत वायु होता है, कोई चीज नीचे फ्लो नहीं होता, ऊपर की ओर फ्लो होता, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, है ना, डकारें ज्यादा आएंगी, रिफ्लक्स होगा, कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करती है, सिर में दर्द बनता है, आंखों में दर्द रहेगा, माइग्रेन का इश्यू रहता है। प्रॉब्लम कहां पे ज्यादा होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस बोल रहे थे, स्पॉन्डलोसिस बोल रहे थे, है ना, ऊपर का हिस्सा जब भी आएगा तो वहां पे जो होगा स्टिफनेस आएगा, मूवमेंट में इश्यू होगा। क्या प्रॉब्लम है, बॉडी में मेटाबॉलिक हीट कम है, गार्हपत्य अग्नि जिसे जठराग्नि भी कहते हैं वो कम है। जितनी गर्म चीज खाएंगे उनको आराम मिलता है, अगर वो गर्म पानी से नहाएंगे तो उनको आराम मिलता है, गर्म सेक लगाएंगे तो उनको आराम मिलता है, ठीक है ना, ये चीजें देखेंगे। गरम गरम वो चाय पीते हैं सुबह उठ के तो फिर उनको थोड़ा आराम मिलता है, वो गरम चाय से नहीं मिलता, वो बेसिकली गर्माहट से मिलता है उनको, क्योंकि बॉडी में गर्माहट बढ़ाने की क्षमता, गर्मी बनाने की क्षमता कम है, कैपेसिटी नहीं है। तो एक काम करें, ये सभी कर सकते हैं। हमारे लोग जब कुंभक करते हैं ना, जब प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हमको तो कुंभक करते करते पसीना बहुत आता है। तो हम ये बात उनको बताते हैं कि भाई आपने कुंभक किया, पसीना, आपने तो एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी बैठे बैठे पसीना आ रहा है आपको, यानी कि आपका मेटाबॉलिक हीट हमने बढ़ा दिया, गार्हपत्य अग्नि बढ़ा दी। एक और चीज कहते हैं कि हमें भूख ज्यादा लग रही है, इसका मतलब उनका हाजमा अच्छा हो रहा है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, चीजें बॉडी के अंदर फ्लो हो रही हैं। और चीजें होती हैं, ऐसे लोगों को हार्मोन इश्यू भी होता है, जिनका कफ प्रकृति होता है ना, उनका हार्मोन इश्यू भी होता है, हार्मोन इंबैलेंस होता है। तो हार्मोन इंबैलेंस लोगों का ठीक हो रहा है, हम वैसे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उनका कुंभक करने से हार्मोन इंबैलेंस ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अब मैं आपको सेम चीज को एक हीट एस्पेक्ट से समझा रहा हूं कि बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ और फ्लो, वो दोनों वीक है, उसको बढ़ा देंगे। फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा अंदर प्रेशर डालते हैं तो फ्लो बढ़ेगा ना, अंदर प्रेशर बनाएंगे तो फ्लो बढ़ेगा ना, चीजें चलेंगी। तो कैसे अंदर प्रेशर बनाएंगे, सांस रोक के ही बनाएंगे ना, और कोई तरीका है क्या, और तो कोई तरीका नहीं है। तो आप कुंभक करेंगे तो ये इश्यूज आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ना। इसकी कोई दवाई नहीं होती है, कोई दवाई खाने के बाद में आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाता है क्या, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी और ना ही बन सकती है। आपका फ्लो बढ़ाने के लिए कोई दवाई होती है क्या, नहीं, फ्लो बढ़ाने के लिए नहीं होती, डिविएट कर देती है। तो नेचुरल आपके बॉडी का ही स्ट्रेंथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, दवाई खाएंगे तो खराब हो जाएगा। तो दवाई सोल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है, वो मैनेजमेंट के लिए 2-4 दिन आपने कोई चीज खा ली वो एक अलग बात है, मगर ट्रीटमेंट तो करिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Madhav Nayak talks about nerve pain in hand. देखिए, पहली बात तो ये किसी ने पूछा 15 मिनट्स आफ्टर टेकिंग फूड, प्लीज डोंट डू इट। अगर आपको ये करना है तो प्लीज कम टू द प्रोग्राम। ये 15 मिनट बाद में आप अगर कुंभक करेंगे, हो सकता है आपका सारा पलट जाए, अब जितना भी खाया वो सारा फेंक दे, शरीर बाहर फेंक दे। तो मैं आपको समझा रहा हूं कुछ चीजों को, इसीलिए हम आपको आपके ऊपर नहीं छोड़ रहे कि आप करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयाम है, कुंभक एक बहुत बड़ा संसार है, साइंस है ये बहुत बड़ा। अगर 100 साल भी इसके ऊपर रिसर्च होना तब भी कम है। तो गाइडेड वे में करेंगे तो अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर जनरली आप देखेंगे कि कुछ भी करें, शरीर जो है कुंभक से नुकसान नहीं करता आपका, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको एकदम से लगे कि नुकसान हो गया। तो आपका खाना सारा शरीर अगर फेंक दे तो वो तो नुकसान हो गया ना आपका। तो ऐसा ना करें, टाइमिंग्स हम बताते हैं कब करना है, किस टाइम पे करना है, कितनी देर बाद कर सकते हैं, वो प्रोग्राम में हम गाइड करते हैं सारी चीजें। अपने मन से कुछ भी बनाए नहीं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सब कुछ कवर फिर भी नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि एक ही पक्ष है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा हाथ का, पीछे देख पाएंगे क्या?
तो लॉजिक जो है ना, जिस लॉजिक से आप सोचते हैं, वो लॉजिक बहुत ही खराब तरीका है जीवन को समझने का, वो पूरा नहीं समझ पाएगा कभी भी। इसीलिए एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल डेवलप किया गया है। केवल आपका लिवर ठीक नहीं करेंगे, लिवर भी ठीक करेंगे, साथ में और भी ऑर्गन को ठीक करेंगे, तभी काम होगा ना। खाना खाने के 15 मिनट बाद में प्लीज डोंट डू कुंभक। व्हेन यू आर लिटिल एम्प्टी इन स्टमक, आप कुंभक करना चाहें तो कम से कम 3 घंटा वेट कीजिए, 3 घंटा वेट कीजिए, है ना। आइडियल टाइम जो होता है 4 से 4.5 घंटे हम बोलते हैं, मगर फिर भी 3 घंटा तो कम से कम आपको वेट करना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बार दोबारा रिपीट करें। Nerve pain in hand. नर्व पेन इन हैंड। सबसे पहली चीज, कौन सी दवाई है दुनिया में जो न्यूरो रीजेनरेशन करवाती है, नर्वस सिस्टम का रीजेनरेशन करवाती है? कौन सी दवाई है? कोई एक दवाई बता सकते हैं आप? कोई भी दवाई बता नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दवाई न्यूरो रीजेनरेशन नहीं करवाएगी। हाँ, ग्रोथ हार्मोन अगर शरीर में लेने लग जाएंगे तो आपको ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ होगा, जो कि बाद में कैंसर बन जाता है। तो इंसुलिन आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, तो इंसुलिन कैन लीड टू कैंसर। क्या आपको मालूम है इस बात का? ध्यान से, बाहर से जब भी कोई चीज केमिकल लेते हैं तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। अच्छा, न्यूरो रीजनरेशन होता नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम आपके शरीर में हर चीज का सेंसेशन कैरी करता है, उसके बगैर कोई भी चीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो नर्वस सिस्टम डीजनरेट हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। पेन फैक्टर्स, ह्यूमन बीइंग के पेन फैक्टर्स बहुत ज्यादा एलिवेट, बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज है न्यूरो डीजनरेशन, जैसे बहुत सारी कंडीशन है, ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, फ्रोजन शोल्डर, लॉक क्या कहते हैं, टेनिस एल्बो, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे। हाँ, डायबिटीज न्यूरोपैथी करके आपने सुना होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी जैसा सुना होगा। ये सब न्यूरो डीजेनरेशन, नर्वस सिस्टम, जो नसें हैं आपकी, जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है, उसके डीजेनरेशन की वजह से होता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम को क्या हम रीजनरेट कर सकते हैं? जैसे ब्रेन भी डीजेनरेट हो रहा है, हमारा ब्रेन भी डीजेनरेट हो रहा है। तो कंडीशन जैसी पार्किंसन, वो बहुत बढ़ रहा है दुनिया में, है ना, पार्किंसन बढ़ रहा है। दूसरा क्या कहते हैं, भूलने की वो टेंडेंसी आ जाती है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये भी एक ब्रेन का डीजेनरेशन का ही हिस्सा है, ठीक है ना। नींद ना आ पाना ठीक से, बॉडी का रिदम खराब हो पाना, ये भी न्यूरो डीजेनरेशन के इंडिकेटर्स हैं, मार्कर्स हैं, जिसे आप मार्कर्स कह सकते हैं। तो मेंटल इशू का बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं मार्कर्स हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं कि बॉडी में डीजेनरेशन बहुत ज्यादा है, जिसको आप बाइपोलैरिटी, डिप्रेशन, मेनियाक टेंडेंसी, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे कुछ कुछ नामकरण करके ठीक किसी को भी नहीं करते, है ना। अंग्रेजों की एक फितरत होती है, वो कहीं भी जाते हैं कहते हैं देखो हमने पता लगाया, इंडिया में आए तो बता रहे इंडिया को हमने डिस्कवर किया, अमेरिका को हमने डिस्कवर किया, मून को हमने डिस्कवर किया, जैसे उनसे पहले तो था ही नहीं है। ये खराब टेंडेंसी है उनके, इससे कम से कम अपने को निकालिए। नाम रख देने से कोई भी चीज ठीक नहीं होती, और नाम का मतलब उसका कोई डेफिनेशन भी उनको मालूम नहीं। तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? पता नहीं जी। डायबिटीज क्यों होती है? पता नहीं जी। आर्थराइटिस क्यों होता है? पता नहीं जी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? पता नहीं जी। न्यूरो डिजेनरेशन क्यों होता है? पता नहीं जी। जो पता नहीं जी हैं, उन्हीं के पास आप रोज दरवाजे पे उनके खड़े होते हैं कि मुझे ठीक कर दीजिए। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस कारण कहीं और देखें नहीं, क्या और ट्रीटमेंट ना लें, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो न्यूरो रीजनरेशन होता है 100%। आज से कुछ साल पहले कहते थे कि आप नर्वस सिस्टम को या जेनेटिक्स को ठीक नहीं कर सकते,
चेंज नहीं कर सकते। आज कहते हैं चेंज कर सकते हैं जी। आज से कुछ साल पहले कहते थे कि आप ब्रेन में रीजनरेशन नहीं कर सकते, आज कहते हैं नहीं जी कर सकते हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दे दिया अब उन्होंने। आप जरा इन चीजों को पढ़िए, नामकरण करने में बड़े तेज होते हैं ये, उस्ताद होते हैं, फट से नाम रख दिया। और ऐसा ग्रीको रोमन नाम ही रखेंगे। आप क्यों नहीं रख लेते अपनी लैंग्वेज में नाम? कुछ नहीं रखने देंगे आपको, क्योंकि वो मालिक हैं दुनिया के, आप नौकर हो उनके, आप गुलाम हो उनके। तो इन सब चीजों से निकलिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी मानने लग गए हैं कि नर्वस रीजनरेशन होता है। जिनको अभी किसी ने शायद पूछा था कि पैरालिसिस है, हमारे पास में पैरालिसिस के बंदे जो है वो उनका बहुत ज्यादा न्यूरो रीजनरेशन होके सेंसिटिविटी वापस आ जाती है। ड्रॉप फुट ठीक हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है, लॉक जॉ ठीक हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है, टेनिस एल्बो ठीक हो जाता है, इस तरीके की चीजें। और जहां पर भी न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, रेटिनोपैथी रुक जाती है। और कई केसेस में ये रिवर्स हो सकती है कंप्लीटली, डिपेंड करता है कितना खराब हो गया है सिचुएशन। तो क्या नर्व पेन जो न्यूरो डीजनरेशन की वजह से, क्या वो ठीक हो सकता है? 100% हो सकता है। दूसरी चीज, नर्व पेन केवल डीजनरेशन की वजह से ही नहीं होगा, और रीजन क्या हो सकता है? डिसअलाइनमेंट की वजह से भी होता है। कहीं दब रहा है आपका नर्व, जैसे सपोज कीजिए आपके दाएं पांव में पेन हो रहा है, तो हिप पे आपका नर्व दब रहा होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है। जैसे राइट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं वो नर्व दब रहा है, तो उस एरिया में आपको पेन हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी रीढ़ की हड्डी, अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं व्यान शक्ति। तो हम क्या करते हैं आपके प्रोग्राम में, हम जो सिखाते हैं आपको, उसमें एक प्रोसेस ऐसा है जो कि व्यान क्रिया कुंभक है। वो हम आपका बॉडी का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो बढ़ाते ही हैं, आपके पूरे रीढ़ की हड्डी को खोलते हैं। नर्व अगर कहीं पे पिंच हो रहा है तो फिर वो खुल जाएगा। आपके रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कि दोबारा से नर्व पिंचिंग की सिचुएशन नहीं आए, और ऊपर से आपका स्लिप डिस्क जैसी चीज ना हो, है ना। जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आप देखेंगे अगर नर्व पिंचिंग की वजह से पेन हो रहा है, किसी नर्व में पेन हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज है कि अगर नर्वस सिस्टम मसल के साथ में मिलकर काम करता है, अगर मसल कम हो गया कहीं पे, तो वहां पे दबेगा तो वो नसें दर्द करेंगी। जैसे कई लोग जो हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक वीकनेस, उनके शरीर में उनको टिश्यू ग्रोथ होता ही नहीं है, कम होता जाता। तो क्या देखेंगे? बटक्स पे, नितंब पे ना मांस कम हो गया, बिल्कुल एक्सपोज हो गया, छातियों में हड्डियां एक्सपोज हो गई, हाथों में हड्डियां एक्सपोज हो गई, कि वो जो शीथ है जो प्रोटेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, वो कम हो गया, मसल कम हो गए, सूख गए मसल, तो नर्व पेन आएगा। जब तक आप उसको हाइड्रेट नहीं करेंगे या फिर वो ठीक से हाइड्रेट नहीं होगा, तब तक वो पेन रहेगा, है ना। स्टेनोसिस की बात हम कर रहे थे। स्टेनोसिस में नस दब गई, क्योंकि हार्ड हो गया, नस दब गई अंदर, तो कंटिन्यूसली दर्द को नजर में आएगा। कई बारी मूवमेंट में पेन होता है, पेन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता जाता है, वो न्यूरो रीजनरेशन की वजह से होता है। तो वो न्यूरो रीजनरेशन की वजह से वो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अलाइनमेंट करना पड़ेगा बॉडी का। अलाइनमेंट जब भी हम करेंगे, तो जो डिसअलाइनमेंट की वजह से पेन हो रहा है, न्यूरो पेन, वो ठीक हो जाएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करेंगे तो जो डीजनरेशन ऑफ मसल्स या स्टेनोसिस ऑफ मसल्स की वजह से पेन हो रहा है, या मांस कम है उस जगह पे, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो वो दर्द कम हो जाएगा, है ना। तो एक प्रॉब्लम, मगर उसके कई आयाम मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, और इसी वजह से हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, कि डायग्नोसिस करके ये पता लगाते हैं कि क्या चीज आपके शरीर, कौन सी शक्ति आपके बॉडी के अंदर वीक हो चुकी है, जिसको बढ़ाने की वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, अलाइनमेंट ठीक होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वो फिर हम कस्टमाइज करते हैं आपके मॉड्यूल को, कुंभक मॉड्यूल को, अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस। ये भी जरूरी है ना। हाँ जी, कोई और है क्वेश्चन? S.K. Bhatia, sir, you can ask your question.
I've unmuted you. मनोहर लाल मदान, आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन, मैंने अनम्यूट कर दिए। नहीं आ रहा हूँ गया। एस के भाटिया सर, you're audible. जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एडवांटेज जो है टीम बॉलिंग पहले करेगी, मैं समझता हूँ उसको ये है कि बहुत कैच कॉन्सेप्ट करें और सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। डायबिटीज 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 Hello. अगर आप, हाँ अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है, अपना नंबर छोड़ जाइए, आपको डायबिटीज के प्रोग्राम की तरफ में हम गाइड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। Okay, next, Vinay Singhal sir, you can ask your question, please. Vinay Singhal sir. Madam, myself Manohar Lal Madan. Yeah, tell me, sir. Please ask your question. मनोहर लाल जी पूछिए। आपका म्यूट हो गया मनोहर लाल जी, आप अनम्यूट करेंगे तभी पूछ पाएंगे। In the meanwhile, जगजीत सिंह जी आप अनम्यूटेड है, आप पूछ लीजिए। Vinay Singhal sir, if you want to ask, you can ask. So that we don't waste time. Shangamitra Sinha, you can ask, unmute yourself. Yeah, Yes, thank you. Shangamitra. Yes, thank you. नमस्ते स्वामी जी, I have rheumatoid arthritis और उससे मुझे दोनों नीज में बेंड आया है। लेफ्ट नी में डॉक्टर हैज आस्क्ड फॉर नी रिप्लेसमेंट, राइट नी में ही सेड फिजियोथेरेपी आप कराओ। तो आई एम अंडरगोइंग फिजियोथेरेपी, ऑफ कोर्स इट इज पेनफुल एंड फिजियोथेरेपिस्ट हैज सेड कि लेफ्ट नी भी मैं ट्राई करूंगा, ऑल्दो आई डोंट गिव यू 100% गारंटी कि वो ठीक हो पाएगा। तो बेसिकली मेरा इसमें आने का यही है कि एक तो मुझे फिजियोथेरेपी के लिए बहुत अंदर से स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा इससे लेग्स कुछ स्ट्रेटन अप हो सकता है, आर्थराइटिस तो ऑफ कोर्स आप बोल ही रहे हैं उससे कंट्रोल हो सकता, मतलब खत्म हो सकता है। तो देखो अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक नहीं करोगे तो कोई इलाज तो है नहीं, नी रिप्लेसमेंट करा लोगे, आपके तो बॉडी नी को जबरदस्ती बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको तो बहुत लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे डाल देंगे। वो कराना नहीं अगर- चाहते, इसीलिए ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर इम्यून रिस्पांस को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फिजियोथेरेपी से कोई चीज ठीक नहीं होती। अगर वो फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी से आराम मिल जाएगा, मगर वो फिजिकल लेवल पे नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मूव नहीं कर रहे तो जबरदस्ती थोड़ा मूव करा दो तो मूव करने लग जाए, ऐसा थोड़ा ही है। नहीं, तो अंदर से प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, जो अगर हम कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना। बाहर अगर स्टिफनेस आ गई सपोज करो और बाहर आप जबरदस्ती करोगे तो आपके लिए तो टॉर्चर है वो, बिल्कुल है ना। फिजियोथेरेपी तो आपके लिए टॉर्चर है और फिजियोथेरेपी से वो ठीक नहीं होने वाला, बिकॉज द प्रॉब्लम लाई समवेयर एल्स। एग्जैक्टली। So you'll have to correct that. If you correct that, then you will see कि this will not remain as a torture. Your body will start moving properly, and then you'll not need क्या का forceful इस तरीके का जो चीज है वो फिजियोथेरेपी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा इनिशियली आप थोड़ा सा भी उसको पुश करेंगे तो वो हो जाएगा ठीक। अगर आपका जो मेन रूट कॉज है वो ठीक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम, ठीक है। अब देखो नी रिप्लेसमेंट तो कभी भी करवा सकते हैं ना, बिल्कुल। गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम, 6 महीने से साल भर थोड़ा अपने शरीर को दीजिए, एक मौका दीजिए और उस पे काम कीजिए, आप देखेंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। Okay, Veena Vadhavan, ma'am, you can ask your question. Vinay Singhal sir, please unmute yourself if you want to ask. Yes, I want to ask a question. Okay, after it's- Veena, Vinay sir.
Yes, it's for my father. He's 71 years old and he recently had a heart issue. He had a heart bypass surgery a few year in 2006, a few years back, and recently he got another issue where he got congestion in his heart and he also has AF. So my question is, can with this condition his heart rate keeps getting, it's irregular, so with this condition can he follow this practice? See, arterial fibrillation, when you said arterial fibrillation, what you'll see, the heart condition, if there is a heart condition, there is no treatment for it as such. The condition will only go worse with age, because the factor which actually creates the heart strength, those factors are weak in the body, and by taking any medication or by doing any kind of surgical procedure, the strength factors will not come back. So what can he do kumbhak? Obviously kumbhak is the only way. किसी का बैकग्राउंड में नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है. हाँ, म्यूट कर रहे हैं. 1 मिनट. Swami ji, please unmute yourself. So, can he do kumbhak at this age? Yes, he can do kumbhak at any age if he wants to make himself better than before. One thing, but he has to do. Kumbhak is not something that will harm you unless and until you go beyond a certain threshold, which your body will indicate that it is enough. So your body is the best indicator till what level, till what extent you can take leverage with it. Anybody, even in a person who is lying on a deathbed, that even that person can extend a life with whatever time period by doing kumbhak. Maybe for few minutes, few hours, few days, few months, and few years also, if you start early. Obviously, the condition at this age also can be improved. It can be improved, and everybody would want to improve. I would rather say till whatever age you live, you should be independent of anything. You should not be dependent on medicine, on surgery, on doctors, on hospitals, on even your family members to actually cater you. So this can easily be achieved through kumbhak. By kumbhak, we have also seen that tachycardia, bradycardia, arterial fibrillation, arrhythmia, arrhythmic beating of the heart, and requirement for stent angioplasty goes down drastically by doing kumbhak. एक अगर स्टेंट लगा दिया आपके, तो आपको क्या लगता है दूसरा स्टेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने हार्ट का स्ट्रेंथ तो बढ़ाया ही नहीं. एंड मोर ओवर, you know, if you are doing kumbhak, even if there is an heart attack, you will easily be able to overcome. There are many people, we run a BP and heart program where there are people who report that they got into a heart attack condition, but their body didn't show any symptom, so they didn't go to the doctor. But because they had a regular checkup, when they went to the doctor said there must be, because your ECG is indicating something, so there must be a heart episode. He said, yes, I felt something for a few hours, but it became fine. कुंभक करने का मैजिक देखो, आपको एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन टेबल पे नहीं जाएंगे, because your body is built in such a manner that it is able to, in fact, every heart attack will build your strength of the heart. Do you know this? Unless and until you do a surgical procedure. स्टेंट डलवाएंगे तो 5 साल कम हो गया जी, बट कुंभक करेंगे तो पता नहीं कितने साल बढ़ सकते हैं. So this is the magic which we want to actually demonstrate and bring about in the world, where हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि अपने शरीर को क्रिमिनल मत बनाइए. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता था. आज हमने ये कंडीशन ला दिया है, तो आपके शरीर में वो क्षमता है. योर बॉडी हैज द कैपेसिटी टू टेक केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, डिसऑर्डर, डिजीज. आपको वो कैपेसिटी बॉडी की वापस रीजनरेट ठीक करनी है, वो कुंभक से ठीक हो.
So at age 71, he can do Kumbhak, absolutely do Kumbhak. He will have a lot of benefit from it. मगर अगर उनकी केवल हार्ट कंडीशन को एड्रेस करना है आपको, तो प्लीज लीव योर नंबर. आवर मेंटर्स विल गाइड यू टू द राइट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. सो अगर हार्ट कंडीशन को ठीक करना है तो देयर इज अनदर प्रोग्राम फॉर इट. रादर वी वुड रादर सजेस्ट दैट you we direct you to that BP and heart program. Leave your number with condition heart and heart issues. वो आपको फिर हम गाइड कर देंगे. Okay, thank you. स्वामी राजविभू, Vinay Singhal, sir. हाँ, स्वामी राजविभू नमस्कार. नमस्कार जी, बोलिए. हाँ, मेरी वाइफ को बैक एक में या फिर कभी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन वगैरह होता रहता है, अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है. तो अभी हमने डॉक्टर को दिखाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आया और डॉक्टर ने बोला कि अभी क्योर नहीं हो सकता, आप इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं करके. तो मेरे दो प्रश्न हैं आपसे. तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ये बात सही है, क्या ये कुंभक के थ्रू एकदम से हमेशा के लिए जिंदगी भर से खत्म हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब तक अगर मुझे इस चीज की कुंभक करने की, सीखने की सुविधा अगर नहीं मिलती है, तो क्या डाइट मैनेजमेंट से हम अपनी लाइफ को इतना अच्छा कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी को हम उसको दूर रख सकें? और वो डाइट मैनेजमेंट थोड़ा सा कुछ गाइड कर सकते हैं कि भाई नाश्ते में, लंच में और डिनर में क्या चीज ली जाए, क्या अवॉइड की जाए? अच्छा, मैं पहली बात बोलूंगा कि आपको मैं अच्छा भोजन देता हूं, उसके बाद आप मैराथन दौड़ना शुरू कर दीजिए और 25 किलोमीटर दौड़ जाइए. क्या ऐसा पॉसिबल होता है? तो भोजन जो है ना, आपकी शक्ति को खर्च करता है. आपके शरीर की शक्ति लगती है उसको पचाने में, तभी वो कुछ एनर्जी आपके बॉडी में वापस देता है. तो भोजन से आप ठीक कब होते हैं? जब आपके रिकवरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. उस समय अगर भोजन खराब करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो भोजन सही करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. मगर ऐसे केसेस बहुत कम है जहां भोजन करके ही वो ठीक हो जाए. यंग एज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसमें. दूसरी बात यह कि यू कैन नॉट करेक्ट द फूड कंप्लीटली. आप भोजन को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां भी देखेंगे आपको हाइब्रिड, आपके बीज ही खत्म कर दिए गए हैं, जो कि प्राकृतिक बीज, नेचुरल बीज थे. अब सारे हाइब्रिड बीज ही आएंगे आपके पास में, तो नेचुरल बचे ही नहीं. जो आपका शरीर पहचानता है जिन बीजों को, वो बीज ही नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया. उसके बाद आपके मिशेलिन शेफ जो है, उन्होंने ठेका ले रखा है दुनिया को बर्बाद करने का. दे डोंट हैव अ नो हाउ ऑफ फूड, उनको मालूम ही नहीं. फिरंगी माइंडसेट सबसे बेवकूफ, फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति होते हैं. उन्होंने आपको इतना फंसा रखा है कि ना तो उगलते बने ना तो निगलते बने, ये हालत कर दी है. तो आप देखेंगे पैकेज फूड आप अवॉइड नहीं कर सकते. आप अपना खाना तो उपजा नहीं सकते. अगर उसको ऑर्गेनिक भी बनाना चाहेंगे तो पड़ोसी नहीं बनाने देगा आपको, है ना. तो बहुत क्वेश्चन मार्क है. एनवायरनमेंट खराब कर दिया, एनवायरनमेंट डिविएट कर दिया ना. आप धुएं वाली जगह में जाते हैं तो सांस कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं? सांस कम लेते हैं ना, नेचुरली सांस कम लेते हैं. तो क्या अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो क्या आपको लगता है आप सांस अच्छी ले रहे हैं? आपके बॉडी को मालूम है कि वो सांस अच्छी नहीं ले रहा. तो कहने का मतलब है कि आप अच्छा भी कहां तक कर पाएंगे. लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज जितना भी हो सके अच्छा करें. बहुत लोगों को तो बहुत फायदा होगा, बहुत लोगों को इतना नहीं होगा, मगर थोड़ा तो होगा, कुछ तो होगा फायदा. तो भोजन को अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, उसको करेक्ट कीजिए. मगर can food become your medicine? Not at the present time, or that also not on maximum people. कुछ लोगों में वो मेडिसिन जैसा भी काम करेगा. अच्छा, इसीलिए कह रहा हूं वो अच्छा है आपका भोजन करेक्ट करना, अच्छी बात है. गो टूवर्ड्स ऑर्गेनिक, थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ में जाए. थोड़ा आपके ना भोजन अच्छा देखना है तो कहां देखना है? अपने पूर्वजों को देखना है. खराब देखना है तो कहां देखना है? मॉडर्न शेफ को देखना है. अगर भोजन को खराब करना है, फूड को खराब करना है, तो किसको देखना है? मॉडर्न शेफ को देखो. अच्छा करना है तो किसको देखो? अपने परदादा दादा, उनको देखो. तो क्या खाते थे, है ना. तो हमारे देश में सबसे पहले फूड का साइंस पनपा था. महाभारत काल में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा नल. नल और दमयंती की कथा है महाभारत में.
आप अगर गूगल करें तो आपको मिल जाएगी। वो राजा नल जो थे, उन्होंने पहली बुक इन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि उसके पहले काम नहीं हुआ, उसके पहले भी काम हुआ, मगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहला रिकॉर्ड किया था फूड का साइंस। ठीक है ना, ये भारत में ही पैदा हुआ। जितना भी फूड का कल्चर है वो इंडिया से आउटवर्ड फ्लो किया है। लेकिन आज आप देखो, जिस देश में चावल नहीं होते थे, वो कहते हैं वो लोग, उन लोगों ने बिरयानी बनाई। अरे जहां चावल नहीं होता बिरयानी कैसे बनाएगा वो? तो इतना खराब हो चुकी है हमारी बुद्धि। हमारे देश में एक टाइम पे जो काला सोना था वो क्या था? काली मिर्च। दुनिया हमारे देश में मसालों के लिए, जैसे मसाला कहते हैं हम, वो बेसिकली पहले हम औषधि कहते थे। पहले हम उनको औषधि कहते थे। आज भी बंगाली में आप देखेंगे तो कहते हैं ओसुद, ओसुद। मसाले को क्या कहते हैं? ओसुद बोलते हैं। तो औषधि है वो। अगर आप सही तरीके से फूड को फिर से वापस ला सके वो साइंस, तो हम फूड को भी एक मेडिसिन बना सकते हैं, जिसकी तरफ में हम काम कर रहे हैं, जिसकी तरफ में हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपको अपना फूड को अच्छा करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा फूड को ठीक करने से? हो सकता है अगर वो किसी एक यंग पर्सन में अभी अभी हुआ है, जस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है और उसने फूड को बिल्कुल ऑर्गेनिक बना दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक किया, तो उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? मगर ऐसे कितने केसेस आपको देखने को मिलेंगे? ऐसे कितने केसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर दवाई नहीं खाई है? अगर आप दवाई खा रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, और फिर फूड को ठीक करके अपने आप को ठीक करेंगे, तो नहीं होने वाला। क्योंकि आपने जो बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ वीक कर दिया है, वो भोजन से नहीं ठीक होगा, वो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कुंभक वही तरीका है जिससे कि हम उस ऑर्गन, जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, किसी लिवर खराब हो गया किसी का ना, किसी ने लिवर के बारे में भी पूछा था, लिवर खराब हो गया किसी का, तो उसकी सांसों को सुनने की कोशिश करें, देखें कि शरीर क्या कर रहा है, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। तो बॉडी का रिस्पॉन्स आप सांसों से पता कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं तो सांसों का रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो भी डिविएट हो जाता। बट ऑब्जर्वेशन, जेनेरिक ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा आपको कि लिवर खराब हुआ है तो सांस को सुने, किडनी खराब हुआ तो सांस को सुने। देखिए दोनों में फर्क क्या है। आप क्या देखेंगे, जो लिवर खराब बंदा है ना, उसका सांस, लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस इस तरीके का हुआ, तो उसकी सांस ना छूटने, एक्सलेशन जो है बड़ी लंबी लंबी कर रहा है बंदा, वो इंसान एक्सलेशन बड़ी लंबी लंबी कर रहा है। और किडनी वाला पेशेंट जो होता है ना, वो देखेंगे आप इनहेलेशन लंबी लंबी कर रहा है, यानी बॉडी तो ठीक करने की कोशिश कर ही रही है ना। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना उसको, दवाई खा के वो भी खराब कर देते हैं। तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं? तो हम फॉर्मूला बन गया। तो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट मतलब 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, कुछ भी मान लीजिए। 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन करेंगे तो लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है। 4 यूनिट इनहेलेशन, लंबा इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन करें तो किडनी पे असर जाना, किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मगर वापस से कह रहा हूं, लिवर किडनी के बगैर काम नहीं करता, किडनी हार्ट के बगैर काम नहीं करता, हार्ट लंग के बगैर काम नहीं करता। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच भी लेना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम आई वो भी एड्रेस करना है, होलिस्टिक अप्रोच भी लेना है, इसीलिए मॉड्यूल डिजाइन किया जाता है, लुकिंग इनटू ऑल दैट। तो जब तक कुंभक नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे, तब तक क्या क्या कर सकते हैं? भोजन अच्छा कर सकते हैं, भोजन ठीक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन भोजन का एक फंडामेंटल रूल तो मान लीजिए। क्या रूल? आपका शरीर जब खूब भूख लगाए तभी भोजन करना। आपने तो टाइम पकड़ रखा है, टाइम हो गया खाने का, 2 बज गए, टाइम हो गया, चलो खा लेते हैं। ये तो काम गलत कर दिया आपने। आपने तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल देखा। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है? हाथ उठाइए। सबने कैमरा बंद कर रखे हैं क्या? हाँ, प्रोटीन देखा है किसी ने? कार्बोहाइड्रेट देखा है किसी ने? कोई भी विटामिन देखा है किसी ने? नहीं, गोली देखी है आपने, विटामिन तो नहीं देखा आपने। लेकिन बात आप उसी में करोगे जिसको कभी नहीं देखा, जो जानते नहीं उसके बारे में बात, मगर स्वाद के बारे में बात नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जिनको मालूम है मीठा क्या होता है? सबको मालूम है ना। आपका शरीर बोलता है ना कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वही उसका मेडिसिन है। तो जब भूख लगे, थोड़ा वेट कीजिए, अच्छी सी भूख लगने दीजिए, तभी भोजन करेंगे। क्या भोजन करेंगे? जो उस मौसम में होती है चीजें।
आपके पूर्वज कैसा भोजन करते थे? खिचड़ी, दलिया, रसम, समर, खूब पानी डाल के, उसमें खूब पानी की मात्रा होती थी, इसलिए तरी वाली सब्जियां बनाते हैं। आज तो को गाढ़ी बना देते हैं, बिल्कुल फ्राई कर देते हैं। तो मौसम की सब्जियां खाइए, सीजन की सब्जियां खाइए, फल खाइए, बिना सीजन के फल सब्जियां ना खाएं। जो भी भोजन पकाएं उसमें कुछ चीजें जो हमारा साइंस है, तड़के का साइंस है, हमारे मसालों का साइंस है, उसको आप वापस रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। वो क्या करते थे आपके पूर्वज, वो आपका लिवर जानता है। अगर वापस उसी भोजन, वही स्वाद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। तो वही कह रहा था मैं कि भोजन अच्छा देखना है तो अपने दादा परदादा को देखो, खराब देखना है तो मॉडर्न शेफ को देखो, मॉडर्न डाइटिशियन को देखो। मॉडर्न डाइटिशियन, मॉडर्न शेफ है ना, उनको भोजन का ABC नहीं मालूम। प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, इन सब में बातें करते हैं। आप प्लीज इन सब में बात मत कीजिए जो आप नहीं जानते। इतना भी इंसान को गया गुजरा नहीं होना चाहिए कि ग्रीको रोमन वर्ड बोलने को आप अच्छा मानेंगे। टाई पहन लीजिए, कोई हेल्दी हो जाता है टाई पहन के, तो होता है क्या? नहीं तो आप तो कोट देखते हैं, आप तो देखते हैं देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ही ठीक हो जाते हैं, फिर तो बड़ा देख के ही ठीक हो जाओ। तो ये आपकी जो कहते हैं ना कि दास वाली मानसिकता, गुलामों वाली मानसिकता, इसको हटाइए। सबसे बेवकूफ प्रजाति फिरंगी प्रजाति होती है। आज तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में इतने बेवकूफ लोग हमने देखे नहीं। तो आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, उनकी बात मानिए। स्वाद में आप समझे भोजन को, आपको क्या स्वाद में समझे, प्रोटीन विटामिन में ना समझे। प्रोटीन खा के कैंसर पैदा कर दिया गया, प्रोटीन खा के हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दिया गया। थायराइड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं। तो ऐसी भाषा जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे में बात करना बंद कीजिए। आपका शरीर जो समझता है भाषा, उसमें बात करना शुरू कीजिए। आपका शरीर स्वाद में समझता है, उसकी भाषा समझिए। आपके शरीर क्रेव करता है मौसमी फल सब्जियों के लिए, तो वो खाएं। पानी की मात्रा आपके भोजन में अच्छी होनी चाहिए। रॉ थोड़ा खाएं, थोड़ा खाने से पहले कच्ची चीजें खाएं, कच्चे फल खाएं, जो फल खाएं थोड़ा खाने से पहले, उसके बाद पका हुआ खाएं। ये सब चीज, जब भूख लगे तभी खाना है, ऐसी कुछ चीजें जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी बताते हैं। तो हम प्रोग्राम में थोड़ा सा और एडवांस में बताते हैं, तो इस पे आएंगे तो बहुत फायदा करेगा। और क्या चीज कर सकते हैं आप? क्यों अमेरिका को ही सारा धंधा देना चाहते हैं? ऐसा क्या आपकी गुलामी है कि आप अमेरिका को चौधरी बना के रखना चाहते हैं? क्योंकि आप जो दवाई खाते हैं उसका कट अमेरिका को जाता है। उससे ठीक तो कोई होता नहीं, मगर वो हथियार बना के दुनिया पे चौधरी पना करता है। आप बेवकूफ लोगों को अपना हार्ड एंड मनी, मेहनत का पैसा क्यों देना चाहते हैं? तो इस मानसिकता से निकलिए कि आपको केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर को ही अपना सारा धंधा देना, मदद करवाना है। आप तभी आयुर्वेद वाले के पास भी चले जाइए, उसके पास भी पैसा आएगा, रिसर्च होगा, और अच्छा काम होगा, और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। उसको भी थोड़ा धंधा दे दो। एक आयुर्वेदाचार्य को ढूंढ लिए, कोई अच्छे आयुर्वेद जो पारंपरिक तौर पे कर रहे हैं या जिनको समझ है आयुर्वेद की, उनके पास चले जाइए। और भी दूसरे थेरेपी के पास में भी जा सकते हैं आप। तो क्यों ना आयुर्वेद से थोड़ा ट्रीटमेंट करवाएं, क्यों ना पंचकर्मा करवाएं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। आज वो इसीलिए सही नहीं हो पा रही, मार्केट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये पूरा माफिया इतना बड़ा हो गया, उसने किसी और को पनपने नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया। एलोपैथी का मतलब ऑल्टरनेट होता था, मगर आजकल बाकी सब ऑल्टरनेट हो गए। एलोपैथी को साइंस बोलना बंद कीजिए। सर्जरी एलोपैथी का पार्ट नहीं है। सर्जरी एलोपैथी का पार्ट, सर्जरी अलग है, वो कहते हैं। डायग्नोसिस एलोपैथी का पार्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी एलोपैथी का पार्ट नहीं है। उन्होंने इसको भी हजम कर रखा है। एलोपैथी का मतलब केमिकल मेडिसिन होता है जो कि पेट्रोलियम वेस्ट से बनाया जाता है। एलोपैथी का मतलब सिर्फ इतना होता है। एलोपैथी साइंस नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी बीमारी का पता नहीं है। सुपरस्टिशन है ना, हवाबाजी है थोड़ी, लेकिन इतनी बड़ी हवाबाजी की है कि आज हम इतना फंस चुके हैं उसके चक्कर में। तो आप क्या करें? केमिकल फ्री होने की कोशिश करें। कॉस्मेटिक शरीर पे कम लगाएं, केमिकल चीजें कम लगाएं, नेचुरल चीज लगाएं। शादी में उपटन लगाया था, बाद में क्यों नहीं लगाया? अभी घर में बना सकते हैं सब चीजें, बहुत आसान है। तो थोड़ा जमीन, नेचर के पास में जाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा वैद्य प्रकृति है, तो प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमने उसे कट ऑफ कर दिया। जमीन को थोड़ा पांव पे लगाएं। अपनी मां से एलर्जी ना क्रिएट करें। हमेशा जूते पहनने की जरूरत नहीं, चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट साइंस,
दिस इज सुपरस्टिशन। तो जमीन पे पांव रखेंगे तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स ठीक होते हैं। अपान वायु आपकी ठीक होगी, आपका मूलाधार स्ट्रांग होता है जब जमीन पे पांव रखते हैं। तो थोड़ा नंगे पांव चलिए, थोड़ा प्रकृति से जुड़िए, ये सब काम, थोड़ा धूप शरीर पे लगने दें, सुबह की धूप खिली हवा लगने दें शरीर पे। नेचुरल जितना भी होंगे बॉडी उतना अच्छा होगा। जब तक ट्रीटमेंट नहीं है तब तक यही सब ट्रीटमेंट है, ये सब कीजिए, हाँ, और अच्छा रहेगा। तो विल एंड अप हियर, यहाँ पे हम इस वेबिनार को एंड करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। और आप लोगों की लाइफ में खूब सारा हेल्थ हो, खूब सारा सुख हो, वैभव हो, इसी शुभकामना के साथ में। Thank you so much, Swamiji, and to all the participants. Stay well, stay healthy. Signing off, Rachna Botra. Good night.